Hello friends, myself is Balwant Singh. I am assistant professor in the Department of Electronics and Communication Engineering in IMS Engineering College, Ghaziabad, which is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow, that is AKTU, Lucknow. So, we today we will discuss about the introduction of LTI system, and before the discussing LTI, we have to have a look another property of system, that is linearity, and so here we will discuss linear and non-linear systems. So, simple a system is linear if it satisfies superposition principle, and linear system follows additive property, that one, additivity and the scaling or homogeneity property, as simple as. So, a system is linear if it satisfy the superposition principle. Okay. In the लास्ट लेक्चर हमने देखा कॉन्टीन्यूस टाइम सिस्टम होते हैं, आपके डिस्क्रीट टाइम सिस्टम होते हैं. सपोज यहाँ पे कंसीडर ए कॉन्टीन्यूस टाइम सिस्टम. अगेन आई रिपीट, फॉर कॉन्टीन्यूस टाइम सिस्टम वी विल यूज सी टी, continuous time, and for discrete time system we will use dt. Consider a continuous time system and a system, if a system is in this manner, this is the system, and we have input x t and output y t. Means in a system we are providing in signal x t, which name is x t, and the output is named as y t. Let us suppose first signal is x 1 t and the output of x 1 t is y 1 t, then y 1 t is equals to function of x 1 t. मीन्स जो भी सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग x 1 के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट देगा. एंड अनदर सिग्नल सपोज वी हैव x 2 t and for x 2 t we have output y 2 t. Okay. So, if continuous time system is linear, then function of linear combination of input, that is a 1 x 1 t, a 1 x 1 t plus a 2 x 2 t is equals to आपका जो आउटपुट है दैट इज y 1 t एंड y 2 t दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वेयर a 1 एंड a 2 इज द कांस्टेंट. ओके. Similarly, for a discrete time system, you have a system and input is x n and output is y n. Suppose you have two signals x 1 n and x 2 n, and for that signal we have outputs y 1 n and y 2 n. So, discrete time system is linear if function of a 1 x 1 n plus a 2 x 2 n is equals to a 1 y 1 n plus a 2 y 2 n. अगेन a 1 and a 2 आर कॉन्स्टेंट, सिमिलर जैसे हमारा कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम का था. To better understand, let's have a look on the some examples. You have a system जिसका कि इनपुट आपका x t है और उसका आउटपुट y t है. थोड़ा सा हम समझते हैं क्या है, इसको ऐसे नहीं एज ए इक्वेशन नहीं देखते हैं, हम समझते हैं कि एज ए यू हैव ए सिस्टम, मीन्स यू हैव ए सर्किट, यू हैव ए मैकेनिकल सिस्टम, यू हैव समथिंग. इफ यू आर प्रोवाइडिंग इनपुट x t और इस सिस्टम का जो आउटपुट आ रहा है y t, उसका हमने नाम रख दिया है y t, तो y t इक्वल्स टू आपका है t x t. मीन्स अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये है कि आपका y t जो है वो जो भी इनपुट है उसके साथ t का मल्टीप्लिकेशन है. आप यहां पे देखो t x t क्या है, इनपुट है. तो यानी ये सिस्टम जिसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा गया है वो जो भी इनपुट है उसको t से मल्टीप्लाई कर रहा है. सिंपल. सपोज करते हैं पहला इनपुट x 1 t है, दूसरा x 2 t है. सो अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ द सिस्टम, आउटपुट ऑफ द सिस्टम, if input is x 1 t, then output will be
t x1t, and if input is x2t, output will be t x2t. तो linear combination of output means a1 y1t plus a2 y2t will be this one, that is a1t x1 a1t x1t plus a2t x2t. ओके, इसका जो भी आपका आउटपुट आया उसका हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया. अब जो आपने इनपुट माने हैं यानी आपका x1t और x2t है, उसको हम इनपुट लेंगे. माने कि पहले यहां पे हम समझते हैं, यहां पे थोड़ा समझते हैं. पहला इनपुट आपका x1t है, दूसरा इनपुट जो है आपका x2t है, एंड इस टाइम पे हम जो इनपुट लेने जा रहे हैं इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, दैट इज a1 x1t प्लस a2 x2t. अब इसी वजह से यहां पे देखो लिखा है फंक्शन ऑफ a1 x1t प्लस a2 x2t. क्या होगा, जो भी आपने दिया है इनपुट, जो भी आपने इनपुट दिया है उसका t से मल्टीप्लाई होता है. तो इस दफा इनपुट क्या है आपका a1 x1t प्लस a2 x2t है, वो t से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो क्या हो गया, t से मल्टीप्लाई होगा. इसको हम एलोबरेट करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे तो a1t x1t प्लस a2t x2t. अब देखो ये जो आपका रिजल्ट आया है दैट इज इक्वेशन नंबर 1 अगर हम मान लें, एंड द इक्वेशन नंबर 2 बोथ आर इक्वल. So this system is linear, while in this example you have yt which is yt is equals to x square t. यहाँ पे अगर हम समझें तो हमको ये पता चलेगा कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं इस सिस्टम को उसका ये स्क्वायर कर दे रहा है. आपने xt दिया तो जो आपका आउटपुट yt आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो भी इनपुट दिया है उसका स्क्वायर कर दे रहा है. यानी अगर आप 2 देंगे तो क्या आ जाएगा, आउटपुट 4 आएगा. अंडर रूट 2 देंगे तो 2 आएगा, स्क्वायर कर दे रहा. उसी तरह सिमिलरली हमने 2 इनपुट माने, 2 से ज़्यादा भी मान सकते हैं, पर सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 इनपुट मानते हैं. 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, आपके ऊपर है ये. वी हैव 2 इनपुट्स दैट इज x1t एंड x2t. फॉर x1t आउटपुट विल कम x1 square t, and for x2t output will x2 square t. Of course linear combination of these outputs will be a1 x1 square t and a2 square t. लास्ट हमको क्या करना है, हमको अब यहाँ पे जो देना है, जो इनपुट आपने दिया है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन, पहले जो इनपुट दिया है यानी a1 x1t प्लस a2 x2t. ये लीनियर कॉम्बिनेशन, ये देखो यहाँ पे. अब ये क्या करेगा, ये सिस्टम जो हमने डिफाइन किया ये क्या करेगा, ये जो भी आपने इनपुट दिया है उसका स्क्वायर कर देगा. यानी a1 x1t प्लस a2 x2t, यही इनपुट है, इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक, तो अब आप इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम नहीं है, क्योंकि हम इसको अगर होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगाएंगे तो इट विल बिकम a1 स्क्वायर x1 स्क्वायर t प्लस a2 स्क्वायर x2 स्क्वायर t प्लस ट्वाइस a1 a2 x1t इंटू x2t. a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. वो फार्मूला लगाएंगे तो आप सिंपल देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 आर नॉट इक्वल, सो द सिस्टम इज नॉन लीनियर. इट्स नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अगेन डिस्क्रीट टाइम सिस्टम लेते हैं, एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में yn इक्वल्स टू 2xn प्लस n. ठीक है, इसको भी जिस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस किया उस तरीके से सोचते हैं कि जो भी इनपुट है उसका डबल करके और उसमें 3 ऐड कर देना है. इस तरह से हमको समझना है ये सिस्टम काम क्या कर रहा है. द इनपुट विच इज प्रोवाइडेड
वो क्या होगा, डबल होगा, देन ऐड 3, ये इसका काम है। सिमिलर अगर आपका x1n है तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस x1n प्लस 3। अगर आपका इनपुट x2n है तो आपका आउटपुट हो जाएगा ट्वाइस x2n प्लस 3। दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। A1 2x1n प्लस 3 प्लस A2 2x2n प्लस 3। अभी हमको लीनियर कॉम्बिनेशन अगर देंगे तो जो इनपुट हमने पहले दिए थे x1n और x2n का लीनियर कॉम्बिनेशन देंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे देखो इनपुट इस समय क्या है, A1 x1n प्लस A2 x1n, ये आपका इनपुट है, उसका डबल होगा एंड 3 ऐड हो जाएगा। तो देखो जो आपका इनपुट है इसका डबल हुआ और फिर 3 ऐड हो गया। अब हम देखते हैं ये वाला इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज नॉट इक्वल, सो द सिस्टम इज नॉन लीनियर। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले हमने स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम पढ़ा था, मेमोरी और विद मेमोरी एंड मेमोरी लेस सिस्टम, स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। उसके बाद हमने टाइम इन्वेरियंस देखा था, स्टेबिलिटी देखा था, कॉजलिटी देखा था, लीनियर सिस्टम देखा था। तो एक सिस्टम हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से प्रॉपर्टीज सिस्टम के कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता, देखते हैं। सपोज यू हैव ए सिस्टम विच इज डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज dy/t अपॉन dt प्लस ty/t इक्वल्स टू xt। देखो, सिंस दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स डिफरेंशिएशन सो इट्स डायनेमिक सिस्टम। एज सिंपल एज इंटीग्रेशन होता तो भी कैपिटल लगा, इसका मतलब वो डायनेमिक होता। दूसरा टर्म ty/t, ठीक है, ty/t, द टर्म ty/t विल चेंज द आउटपुट विद टाइम। टाइम इन्वेरिएंट के लिए जो कंसेप्ट लगाया था वही सेम आप इसमें अप्लाई कर दो। दिस इज द टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम। थर्ड वन, सॉरी, सिंस द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन ओनली प्रेजेंट इनपुट हैंड द सिस्टम इज कॉजल। आप देख सकते हो सिर्फ xt है, यहाँ पे xt प्लस 1 ऐसा कोई टर्म नहीं है, सो सिस्टम इज कॉजल। नेक्स्ट चीज है, एज लॉन्ग एज xt इज बाउंडेड yt इज ऑल्सो बाउंडेड सिंस द सिस्टम इज स्टेबल। तो ये आपका जो सिस्टम दिया हुआ है डायनेमिक है, टाइम वेरिएंट है, कॉजल है और स्टेबल सिस्टम है। लीनियरिटी चेक करने के लिए हम आगे देखते हैं, हमने वही जैसे हमने पहले करा था, हमने पहला इनपुट x1 माना है तो उसके लिए एक्सप्रेशन आपका ये बन जाएगा। दूसरा इनपुट x2 माना है, x2t, आपका एक्सप्रेशन ये बन जाएगी, क्योंकि x1t के लिए आउटपुट आपका y1 है, x2t के लिए y2t है। तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे दोनों इक्वेशंस का, तो a1 dy1t बाई dt प्लस a2 dy2t प्लस dt प्लस t प्लस a1t y1t प्लस a2t y2t इक्वल्स टू a1 x1t प्लस a2 x2t। थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको अरेंज करेंगे, देन वी विल गेट डी बाई डी टी a1 y1t प्लस a2 y2t प्लस t a1 y1t प्लस a2 y2t इक्वल्स टू a1 x1t प्लस a2 x2t। ठीक है, सो this is similar to original system equation for an arbitrary choice of a1 and a2। इसका मतलब ये है कि अगर आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट है तो आउटपुट जो आ रहा है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन दोनों सेम है, सो द सिस्टम इज लीनियर। कुछ और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं जैसे हमने करा है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। सपोज करते हैं द सिस्टम इज yt इक्वल्स टू xt cos 100 pi t। ये आपका स्टैटिक है, लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है, कॉजल है, स्टेबल है, आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल yt xt स्क्वायर, डायनेमिक है, लीनियर है, दिस सिस्टम इज टाइम वेरिएंट, कॉजल एंड स्टेबल। एंड नेक्स्ट स्टैटिक yt इक्वल्स टू e की पावर xt, दैट इज स्टैटिक, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट एंड कॉजल। ऑफ कोर्स दिस इज द स्टेबल सिस्टम। रिलायबिलिटी, next term is reliability before the discussion of LTI।
रिलाइजेबिलिटी देखते हैं क्या होता है। सिंपल रिलाइजेबिलिटी को देखने से पहले चला ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन से ही, क्योंकि आगे सारे सिस्टम को हम डिफाइन करेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन के ही टर्म में, फिर हम आगे बात करें। तो सर डिफिनीशन ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन सम प्लेसेस आप देखोगे लिखा हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट इज नोन एज ट्रांसफर फंक्शन when all initial conditions are, this is a very important term, when all initial conditions are 0। कई जगह आप ये भी देखोगे जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट इज नोन एज ट्रांसफर फंक्शन व्हेन ऑल इनिशियल कंडीशंस आर 0। ये दोनों जो डिफिनीशन बताए गए हैं, जनरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब आपका कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम होता है उसकी एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, एंड जेट ट्रांसफॉर्म जब जनरली आपका डिस्क्रीट टाइम सिस्टम होता है तो उसकी एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। इसी वजह से ऐसे डिफिनीशन है। तो जनरल डिफिनीशन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे हम एक समझते हैं, द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटपुट एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट इज नोन एज ट्रांसफर फंक्शन, TF। ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमने यहाँ पे TF यूज़ कर लिया व्हेन ऑल इनिशियल कंडीशंस आर 0। इनिशियल कंडीशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली यहाँ तक बात होगी इनिशियल कंडीशन की बात। इनिशियल कंडीशन का मतलब होता है पहले से जो आपको, मान लो सपोज करो कोई आपका सिस्टम है, बिकॉज ऑफ द सम प्रीवियस वैल्यू कुछ ना कुछ आउटपुट देता है, क्योंकि उसके अंदर जो आपके सिस्टम के अंदर ऐसा हो सकता है कि कुछ चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट्स हो उसकी वजह से, या मैथमेटिकली यू डिफरेंशियल और डिफरेंस इक्वेशन जब आपने सॉल्व किया तो वहाँ देखा होगा आपने y0, y1, y-1, x1, x0, x-1 ऐसा दिया होता है, तो वही आपके इनिशियल कंडीशंस होते हैं। यानी इनपुट देने से पहले और इनपुट हटाने के बाद उसका रिस्पॉन्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करा गया। तो इनिशियल कंडीशन 0 होना चाहिए, यानी कुछ भी आउटपुट नहीं होना चाहिए। तब हम देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म या जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट is known as transfer function. A transfer function is called realizable if it can be implemented by causal and stable system. तो realizable system इसलिए मैंने पहले ट्रांसफर फंक्शन बताया, क्योंकि अगर आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है कॉजल है और स्टेबल है तो आपका सिस्टम क्या होगा, रिलाइजेबल होगा। एंड this is the example of realizable system which is shown yn is equals to minus k is equals to 1 to n a k y n minus k plus summation k is equals to 0 to m b k x n minus k। ओके, अब हम आते हैं LTI सिस्टम पे, दैट इज लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। नाम से ही जाहिर है कि जो भी सिस्टम लीनियर होना चाहिए और टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए, ठीक है, तो आपका वो LTI सिस्टम होता है। इससे पहले हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी और टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी देखी है। तो कोई भी सिस्टम अगर वो दोनों फॉलो करता है तो क्या होगा, वो आपका LTI सिस्टम होगा। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे है पहला सिस्टम देखते हैं, लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है, तो पहला सिस्टम क्या हो गया, LTI है। दूसरा सिस्टम भी हम देखते हैं, लीनियर है और शिफ्ट इनवेरिएंट है, तो ये क्या हो गया, शिफ्ट इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट इज बोथ सेम, ये भी आपका क्या हो गया, LTI सिस्टम है। तीसरा सिस्टम आप देखो दैट इज नॉन लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट, तो ये आपका LTI सिस्टम नहीं है। वाइल आप देखते हैं यहाँ पे पहला सिस्टम जो आपका दिया है वो कॉजल है और स्टेबल है, ठीक है, तो रिलाइजेबल है। दूसरा भी कॉजल स्टेबल है, तीसरा भी कॉजल स्टेबल है, तो आपका ये क्या है, रिलाइजेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉजल और स्टेबल होना चाहिए सिस्टम, रिलाइजेबल होता है, और लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट, तो सिस्टम LTI सिस्टम होता है। LTI एंड LSI दैट इज लीनियर शिफ्ट एंड शिफ्ट इनवेरिएंट, बोथ आर बेसिकली इक्विवेलेंट। जनरली जब आपका कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम या एनालॉग सिस्टम की बात करी जाती है तो LTI टर्म यूज़ किया जाता है, और जब डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की बात करी जाती है तो आपका LSI लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम टर्म यूज़ किया जाता है। And here a good example of LTI system is an electrical circuit consisting of resistor, capacitor, inductor and linear amplifier,
And LTI theory is also used in image processing, where the system have spatial dimension instead of or in addition to a temporal dimensions. इमेज प्रोसेसिंग में भी होता है रजिस्टर, कैपेसिटर एंड सो ऑन. इस जगह पे हम LTI सिस्टम की बात करते हैं. बेसिकली LTI सिस्टम ये एक सिस्टम है, इसमें इनपुट होगा और आउटपुट होगा. तो इनपुट और आउटपुट के बीच में या आउटपुट को समझने के लिए जाहिर सी बात है किसी भी एक्सप्रेशन को आप लिखते हैं तो वो एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, उस सिस्टम का रिप्रेजेंट करता है तो जाहिर सी बात है उसमें इनपुट का टर्म होगा. तो द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ LTI सिस्टम आर रिलेटेड बाई यहाँ पे कन्वोल्यूशन इंटीग्रल, कन्वोल्यूशन सम, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ LTI सिस्टम, डिफरेंशियल एंड डिफरेंस इक्वेशन, ब्लॉक डायग्राम, स्टेट वेरिएबल. ये सारे टेक्निक है जिनकी विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ LTI सिस्टम आर रिलेटेड. So before the starting of the convolution we have to understand how discrete time signal can represent in the form of impulses. So let's have a look discrete time signal in terms of impulses. To better understand, let's have a example of let's take a signal xn and think discrete time signal as a sequence of individual pulses, and here you can say that you can see that at the 0th instant, first, second, third, fourth the signal is given, at the -1, -2, -3 and -4 you have a some value are given. नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको समझना है जिससे जैसे हमने पहले समझा था उसी तरह से समझना है. देखो अब मैं इसी सिग्नल की बात बताता हूँ. जैसे यहाँ पे हमने लिया है, अगर हम xn को डेल्टा n से मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा n से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दैट इज डेल्टा n. डेल्टा n आपको पता है कि एट n इक्वल्स टू 0 पे मैग्नीट्यूड. तो इस सिग्नल को और इस सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0th इंस्टेंट पे जो वैल्यू है वही बचेगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है. 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी 3, 4, 5, 6 x y z, तो रिजल्ट क्या आता है उसका सेम वही आ जाता है. तो अगर सपोज करते हैं यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ तो सेम सिग्नल जनरेट होगा, यानी xn या x0 भी इसको लिख सकते हैं, x0 मल्टीप्लाइड बाई xn, तो सेम यही सिग्नल आएगा. ठीक, इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाया गया है. देखो आपका x -2 डेल्टा n + 2 दिखाया गया है. अब देखो लास्ट स्लाइड में देखते हैं, अगर इसी सिग्नल को शिफ्ट कर दें -2 यूनिट तो ये क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग हमने पढ़ा डेल्टा n + 2. तो इस सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला सिग्नल सिर्फ बचेगा. क्यों? क्योंकि ये सारी हर जगह 0 है तो सारा टर्म 0 हो जाएगा. सिमिलरली अगर इम्पल्स फंक्शन को हम राइट शिफ्ट करते हैं दैट इज डेल्टा n -2, तो जो अगर ये सेकेंड इंस्टेंट पे है तो ये वाला सिग्नल बचेगा. तो विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट you can imagine that the discrete time signal, how discrete time signal can be represented in terms of impulses. Similar way you can see that जो हमने आपको बताया x -2 डेल्टा n + 2, x -1 डेल्टा n + 1. अभी हम इस x0 के साथ मल्टीप्लिकेशन है, देखो x2 के साथ मल्टीप्लिकेशन है, x1 के साथ मल्टीप्लिकेशन है. इन दिस इक्वेशन यू कैन अंडरस्टैंड xn सबको ऐड कर दिया गया है. दिस टर्म देखो डेल्टा इम्पल्स फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करा गया और फिर इनको हम ऐड कर देंगे तो आपका xn आ जाएगा. यानी कि अगर इन जनरल हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो xn इक्वल्स टू summation k equals to -infinite to +infinite x k delta n minus k, and this is shifting property of discrete time unit impulse
So because of sequence delta n minus k is 0, only when k is equals to 1, the summation on the right hand side of equation shift through the sequence value x n and preserve only the value corresponding to k is equals to 1. Discrete here the corresponds to the representation of arbitrary sequence as a linear combination of shifted unit impulse, that is x n minus k, where the weighted in this linear combination are x k. For example, हमने जब इम्पल्स फंक्शन और यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ रहे थे तो हमने क्या करा था, देखो यूनिट स्टेप फंक्शन ये था, जो कंसेप्ट हमने अपनाया, ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, दिस इज द यू एन एंड दिस इज एन, और हमने क्या करा था, डेल्टा फंक्शन को राइट शिफ्ट किया था, दैट इज डेल्टा 1, फिर एक यूनिट इसको शिफ्ट किया, दैट इज डेल्टा एन माइनस 1, सिमिलरली एक यूनिट और इसको शिफ्ट किया, दैट इज डेल्टा एन माइनस 2, और सो ऑन, और फिर हमने इसको ऐड कर दिया तो आपका यूनिट स्टेप फंक्शन आ गया। ये कंसेप्ट हम जब यूनिट स्टेप और यूनिट इम्पल्स के बीच में रिलेशन कर रहे थे तो हमने देखा था कि ये आपका आता है। थैंक यू सो मच।